So good afternoon everyone. I Abhishek Verma welcomes to you Brockgold Academy classes. So student last वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 5 तक. Now let's start with the question number 6 of exercise 2D. And question number 6 is find the integral zeros of the polynomial px. This is my polynomial and I have to find the number of zeros. As we can see that the power of this polynomial is 3, so it is clear that there will be 3 zeros. If the power is 2, that means there are two number of zeros, and the power 4, that means there are 4 number of zeros. So what will we use? We will use hit and try method. And the method is you have to put the value 1 minus 1 0 2 minus 2 3 minus 3 4 minus 4 5 minus 5 and so on. If I get answer as 0, that means that that particular value is zeros, and if I don't get 0 as answer, that means the particular value is not 0. So let's check for x equals to 1. Now what I will do, I will find p1. दैट मीन्स इस इक्वेशन के अंदर जहाँ भी x है वहाँ मैं क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा एंड सोल्व करूंगा. आंसर आया 24 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x इक्वल टू 1 इज नॉट द zeros. Same as let's check for x equal to minus 1. I will put minus 1 here in each and every step, and after solving this I am getting 0. That means x equal to minus 1 is the zeros. Similarly check for 2 equal x की जगह 2 रखा. My answer is positive. 2 to the power 8 will be 8. 6 4 is 24, then 22 plus 6, it will be not equal to 0. That means x equal to 2 is not the zeros. Same as check for x equal to minus 2. Now I will solve this question and I am getting 0 as the answer, so that means x equal to minus 2 is the zeros. Same as check for x equal to 3, which is not zeros, and check x equal to minus 3, which is equal to 0. So x equal to minus 3 is the zeros. तो इस क्वेश्चन के जीरोस कौन कौन से आ गए? एक तो -1 पे 0 आ रहा है, फिर -2 पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है. तो आंसर क्या हो गया? x इक्वल टू -1, -2 एंड -3. Fine student. Now let's move to the question number 7. And question number 7 and question number 13 are same. तो ये मैं आपको 13 यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ. जैसे 13 है ऐसे ही 7 है. तो यहाँ मैं आपको 13 करके दिखा रहा हूँ. And the 13 question is, if both x plus 1 and x minus 1 are the factors of this polynomial, then find the value of that. That means x plus 1 is also a factor, x minus 1 is also a factor. That means अगर इस x plus 1 से मैं फैक्टर की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखूं तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने पहले ही गिवन दे दिया कि x plus 1 इज ए फैक्टर. सो स्टार्ट विथ x plus 1. कुछ नहीं करना है, x plus 1 को 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली और फिर यही x की वैल्यू दोबारा इक्वेशन में रख दूंगा. बस फर्क इतना है कि आपको इक्वल टू 0 साथ लेके चलना है. You will have to take equals to 0 because it is given that x plus 1 is the factor. So x equal to -1 इसके अंदर रखा, a into -1 to the power 3 plus -1 का स्क्वायर -2 into -1 plus b equals to 0. यहाँ से इक्वेशन निकल गई -a plus b equal to -3. Now move to this x minus 1. इसको भी x minus 1 को 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी. Now I will check p1. तो p1 इक्वल्स टू भी 0 लेके चलूंगा, क्योंकि इट इज गिवन दैट x minus 1 इज ऑल्सो ए फैक्टर. तो p1 इक्वल टू 0 लेके चला, x की जगह 1 रखा, a इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस b. यहाँ से इक्वेशन निकली a प्लस b इक्वल्स टू 1. एक इक्वेशन ये रही. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. ऐड कर देंगे इसको. यहाँ पे एडिशन हुआ है बिकॉज अपोजिट साइन है, तो हम -a + a कट जाएगा.
b 2b, 3 1 minus 2, and b equal to minus 1. Now put this value in any one equation, you can find a. This is your question number 13, same as question number 7. Now question number 8. Prove that this polynomial is exactly divisible by this. तो अगर किसी का रिमाइंडर 0 बचता है तो वो प्रूव हो जाता है कि वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो उसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में जिसमें प्रूव करना होगा कि कोई पॉलिनोमियल px दूसरे पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, तो लिखने का तरीका बिल्कुल ये होगा. मैंने आपको बता भी दिया है कि रिमेंबर वन थिंग, इफ रिमाइंडर बिकम 0 देन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय डिविजर. तो यहाँ पे इसको px मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं. जिससे डिविजिबल करना है उसको बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे. नाउ आई विल यूज द algebraic division, and what I am saying that the remainder is 0. If the remainder is 0, that means it is proven that this polynomial is exactly divisible by this. अगर remainder 0 नहीं आता तो ये prove नहीं होता. Same as next question, question number 9. Prove that x minus 1 is the factor of x to the power 10 minus 1 and also x to the power 11 minus 1. फैक्टर के लिए बताना है तो अगेन फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे कि अगर किसी फैक्टर से वैल्यू रख के किसी पॉलिनोमियल में आंसर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है. अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो उसका रिमाइंडर होता है. तो पहले इसके लिए चेक करते हैं x माइनस 1 के लिए इस पॉलिनोमियल पे. तो x माइनस 1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 रखेंगे. 1 to the power 10 minus 1 आंसर 0. और मैंने बताया था कि अगर आंसर 0 आ जाए तो ये प्रूव हो जाता है कि ये इसका फैक्टर है. इसी तरह अब x to the power 11 minus 1 के लिए करेंगे तो 1 to the power 11 minus 1 is this is also 0. that means it's proved that x minus 1 is also a factor of x to the power 11 minus 1. Now move to the question number 10. Question number 10 is also same as question number 13. That means question number 7, question number 10 and question number 13 are same. So you have to do yourself. Now move to the question number 11. If ax to the power 3 plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 as a factor, that means x plus 2 इसका फैक्टर है. और फैक्टर है तो यानी कि फैक्टर थ्योरम में इक्वल्स टू में 0 लेके चलना है अगर फैक्टर है तो. एंड लीव्स ए रिमाइंडर 4. दूसरे कंडीशन में 4 आंसर आ रहा है अगर x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है. क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल अगर x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आता है और x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 4 आ रहा है. रिमाइंडर 0 का मतलब फैक्टर. तो दोनों कंडीशन में करते हैं. फर्स्ट कंडीशन है x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0. सो आप क्या करेंगे, इस x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालेंगे, -2. अब यही -2 मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल में रखना है और इक्वल्स टू क्या लेके चलना है, 0. 0 क्यों लेके चले, क्योंकि ये इसका फैक्टर है. फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा. नाउ a एंड x की जगह क्या रखेंगे, -2 टू द पावर 3 प्लस b इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस -2 -6 एंड यहाँ पे इसको सोल्व किया, इक्वेशन बन गई -2a plus b equals to 2. This is your equation number 1. Now use the second condition, that means this polynomial when divided by x minus 2 leaves a remainder 4. बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन चलनी है, बस जहाँ पे 0 लेके चल रहे थे रिमाइंडर को, अब वहाँ 4 लेके चलेंगे. और अब की बार किससे डिवीजन है, x माइनस 2 से डिवीजन है. दैट मीन्स x माइनस 2 को 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. अब 2 ही इस पोलिनोमियल में रखना है. किस पॉलिनोमियल में, इफ ax टू द पावर 3, दिस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख देंगे. तो रखेंगे a टू द पावर 3 प्लस b इंटू टू द पावर 2 प्लस 2 -6 इक्वल्स टू 4. क्यों लिया, क्योंकि रिमाइंडर अब की बार 0 नहीं है, रिमाइंडर अब की बार क्या है, 4 है. रिमाइंडर 4 है तो इसलिए यहाँ पे 4 इक्वल्स टू लेके चलेंगे. एक इक्वेशन मेरी ये निकली थी, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई. 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार इसका सॉल्यूशन देख लें अच्छे से और ट्राई टू डू योरसेल्फ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 12. If x square minus 1 is a factor of, again
एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर ऑफ दिस का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इससे जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तभी फैक्टर बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर क्या आ गए, एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस वन इसके फैक्टर आ गए। तो दो कंडीशन बन गई है। पहली कंडीशन लेते हैं कि जब एक्स प्लस वन हमारा फैक्टर होगा तो एक्स प्लस वन को 0 पुट करेंगे। पहले देखो मैंने लिखा क्या है, इम्प्लाइज दैट देयर आर टू फैक्टर्स, one is x plus 1 and one is x minus 1. So when px is exactly divisible by x plus 1 then remainder will be 0. ये मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ फैक्टर थ्योरम कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो दैट मीन्स उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 होता है। तो पहला फैक्टर जो इसका था वो x प्लस वन था, x प्लस वन को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 आई, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह -1 रख देंगे और इक्वल टू में 0 रख देंगे। 0 क्यों लिया, अगेन आई एम सेइंग 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, -1 टू द पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा, -1 टू द पावर 3 -1 आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 फिर से +1 आ जाएगा, -1 माइनस डी हो जाएगा एंड प्लस ई। यहाँ पे b और d माइनस के हैं जो कि इक्वल टू के इस साइड आके प्लस हो सकते हैं। और अब चेक करो, आपको यही प्रूव करना था, a प्लस c प्लस e इक्वल टू b प्लस d। इट इज प्रूव्ड। नाउ question number 14 is same as question number 13. That means question number 13, question number 7, question number 10, question number 14 are the same question. So you have to do yourself, and if you have any doubt then ask me on my personal number. I will sort out your problem. Question number 15, what must be added to this polynomial so that the resultant polynomial is exactly divisible by 3x square plus 7x minus 6. तो इसमें आपको करना क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक एग्जांपल भी है, एक तो आपको सारे एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं। तो आपने कुछ नहीं किया, एल्जेब्रिक डिवीजन कर दिया, इसका एल्जेब्रिक डिवीजन किया है, ये आपको आता ही है करना। और यहाँ पे मेरा ये रिमाइंडर बचा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है। अब नाउ दिस मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल का केस है तो बार बार कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली डिविजिबल में रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो कुछ नहीं करना है कि जो मेरा जो आंसर निकला था रिमाइंडर ये वाला, मैं इसको 0 पुट कर दूंगा, इसको 0 पुट करा। सो 2x प्लस 3 मस्ट बी एडिड। रिमाइंडर जो आंसर आएगा वही आपको एडिट करना है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इसके जैसा है, ये आपको अपने आप करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फैक्टराइजेशन। So before starting factorization you should know about some identities, and the identities are x plus y to the power 2 equals to, this will be known as whole square, x plus y whole square. If the bracket is together with x plus y, that means it is set to be whole square. So x plus y whole square will be x square plus y square plus 2xy, same as x minus y whole square will be x square plus y square minus 2xy. Now this is x plus y into x minus y, this will be x square minus y square। जैसे ये आइडेंटिटी लिखवाई थी, a square minus b square equal to a plus b into a minus b, ये हमने 8th क्लास में पढ़ भी रखी है। Similarly, x plus a into x minus b, this would be x square a plus b into x n plus ab। जस्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हुए हैं, दैट इज, और कुछ नहीं। x plus y plus z whole square, there are 3 terms and the formula is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। पहले x का y के साथ, फिर y का z के साथ, फिर z का x के साथ। Now next identity is x plus y to the power 3, x cube plus y cube plus 3xy bracket x plus y, same as x minus y whole cube, x cube minus y cube minus 3xy bracket x minus y. Now this is x cube plus y cube. The student get confused between x plus y whole cube and x cube plus y cube. This identity is said to be x cube plus y cube, and this identity is said to be x plus y to the whole cube. Whole cube that means together, and x cube plus y cube that means separated.
So x cube plus y cube is equal to x plus y, x square plus y square minus xy, same as x cube minus y cube equals to x minus y, x square plus y square plus xy. Now the last identities, which is very important, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. The formula for this identity is x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. And in this identity, if x plus y इक्वल्स टू 0, तो जैसे यहाँ 0 आ जाएगा तो 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0 हो जाएगा और ये 3xy इधर आ जाएगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz. Now student, let's move to the exercise number 2e. So I start this exercise with question number 5. This exercise is based on factorization, and the question number 5 is x cube minus x square plus ax plus x minus a minus 1. So there are 6 terms, so I will combine two terms in each. In first 2 terms there is x square is common, so x minus 1, and in these 2 terms a is common, so here will be x minus 1, and last 2 term is x minus 1, so I will take 1 as common. Now I can see that x minus 1 is common, so I will take out x minus 1 from the polynomial. Now the remaining part will be x square plus a plus 1. This is your answer. Next question. a minus 2b minus 2c plus 2bc. So what I will do, I will take AC with a square and minus 2ab and 2bc together. So a square minus AC minus 2ab minus 2bc. I will take a common in between 2 terms. So a common liya, a minus c. Now I will take 2b as common. It would be a minus c. Now I will take out a minus c, and remaining part will be a and minus 2b. This is your answer. Next question. X square plus 1 by x square minus 2 minus 3x plus 3 by x. So I will take these 3 together and these 2 together, these 3 together and these 2 together. So x square plus 1 by x square minus 2. What I will do here, I am just multiplying by x square and divide by x square. If I multiply and divide by the same number in same question, that it doesn't affect the question. ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. लेकिन अपना यहाँ पे काम बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, and this is the formula of a minus b का होल स्क्वायर. So this would be x minus 1 by x to the power 2. Again x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी, x स्क्वायर से डिवाइड करी, ताकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए. मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है. नाउ यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 बाई एक्स हो गया. ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 1 बाई एक्स है. आई कैन टेक आउट कॉमन x माइनस 1 बाई एक्स, सो रिमेनिंग पार्ट विल बी, यहाँ पे 2 पावर है, एक पावर बाहर निकल गई, तो एक पावर बचेगी x माइनस 1 बाई एक्स, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी 3 हियर. Now question number 10. 4a square plus 12ab plus 9b square minus 8a minus 12b. So 4a square can be reduced as 2a का whole square, because 2 की power 2 4 हो जाएगा, a square का a square हो जाएगा. Similarly 9b square को 3b का square लिखूंगा. अब इस 12 के फैक्टराइज करे हैं मैंने 2 इंटू, बिकॉज मुझे फॉर्मूला बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो दिस इज 2, दिस इज a, दैट मीन्स 3b, 2a एंड 3b. तो यहाँ पे a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 8a माइनस 12b. सो दिस वुड बी 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 8a एंड माइनस 12b से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 3b. आई कैन टेक आउट 2a प्लस 3b एज कॉमन. सो यहाँ पे 2 पावर है, तो एक पावर बच जाएगी, एंड माइनस 4 विल बी रिमेनिंग. Question number 13. 27a square minus 48b square. So first of all I will take 3 as common.
3 9 जा 27, 9 a square minus 3 16 जा b square 48. So 9a square can be reduced as 3a whole square and 16b square can be reduced as 4b square. Now I will use this identity. A square minus b square will be a plus b, a minus b. यहाँ पे ये a है और ये पूरा b है. So a plus b, a minus b. a की जगह 3a, b की जगह 4b. Very easy question. Question number 17. X to the power 4 minus 625. So x to the power 4 can be reduced as x square का whole square. At 25 can be reduced as 25 का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे भी यही सेम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. एंड अगेन आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. X square plus 3 root 3x plus 6, this is a quadratic equation, and in class 8th we have studied about this particular polynomial quadratic equation. So I will factorize this polynomial by splitting with the middle term. So 3 root 3 को हम split कर देंगे 2 root 3 plus root 3 में, because 2 root 3 plus root 3 again it will be 3 root 3. So in first two cases I will take x as common, so it will x plus 2 root 3 and plus then I will take root 3 in this common. I will take root 3 as common, so x plus 2 root 3 will be left. Now I can take out x plus 2 root 3 और यहाँ पे बचेगा x plus root 3. Move to the next question now. Question number 20. 7 root 2 x square minus 10x minus 4 root 2. So सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सटर्नल टर्म्स की मल्टीप्लाई करिए 4 रूट 2 7 रूट 2 जो कि क्या आ रहा है 56 आ रहा है. तो 56 मेरा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है और मुझे सम बनाना है 10. तो सबसे पहले मैं 56 के फैक्टर्स देखूंगा क्या है. 28 2 है, 14 4 जाए और 56 1 जाए. तो अब करना क्या है, मुझे इन फैक्टर वो फैक्टर यूज करने हैं कि जो ऐड या माइनस करके क्या आ जाए 10 आ जाए. तो 14 एंड 4 दीज आर द टू फैक्टर्स. इफ आई मल्टीप्लाई -14 + 4 करूंगा तो -10 आ जाएगा. -14 + 4 करूंगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 14 में से 4 माइनस करूंगा तो आंसर 10 आ जाएगा. बस इस 10 की जगह मैंने स्प्लिट कर दिया है मिडिल टर्म को 14 - 4 में, बिकॉज 14 4 जब 56 होते हैं और 14 - 4 कितना होता है 10 होता है. तो नाउ जस्ट मल्टीप्लाई हुई है अंदर -14x माइनस प्लस 4x एंड -4 रूट 2. अब दो के पेयर बने हैं. सबसे पहले पेयर में से 7 रूट 2x पूरा कॉमन आ रहा है तो x बचेगा और माइनस जब 7 रूट 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 आएगा. नाउ 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है x माइनस रूट 2. नाउ आई कैन टेक आउट x माइनस रूट 2 एज कॉमन, सो 7 रूट 2x एंड प्लस 4 यहाँ पे आंसर बच जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 9x minus 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x minus 2y. एज वी कैन सी दैट ये x minus 2y यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक अलग से वेरिएबल मान लो इनको. लेट मैंने क्या सपोज कर दिया कि पुट लेट x minus 2y इक्वल्स टू z. तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई 9z² माइनस 4z एंड माइनस 13. बिल्कुल ऊपर जैसी इक्वेशन आ गई है. वो x में थी, ये z में है, बस फर्क कितना है. अगेन बाहर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 117 आ रहा है. अब मुझे 117 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके क्या आ जाए 4 आ जाए. तो सबसे पहले तो मैं 117 के फैक्टर देखता हूँ क्या क्या होते हैं. या तो 13 × 9 जाओगे या 171 जाओगे. तो 171 में से 1 माइनस करूँगा 116 बचेगा, जो कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको केवल यहाँ पे 4 चाहिए. तो 13 और 9 के वो फैक्टर हैं. अगर मैं 13 में से 9 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएगा. तो दैट मीन्स 9z² माइनस 13z माइनस माइनस प्लस 9z माइनस 13. और यहाँ से इसको फैक्टर करेंगे. सबसे पहले z कॉमन आ रहा था तो 9z माइनस 13, फिर प्लस 1 कॉमन आया तो 9z माइनस 13. नाउ 9z माइनस 13 आई कैन टेक आउट, सो इट विल बी z प्लस 1. नाउ पुट z इक्वल्स टू x माइनस 2y. अब इस z की जगह ही मैंने क्या रख दिया x माइनस 2y रख दिया है. यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आपको 9 की मल्टीप्लाई भी रह रही है यहाँ करनी है, तो 9 की मल्टीप्लाई भी आप करेंगे. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं यहाँ पे.
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सो अब मैंने क्या किया है, इस 6x स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी कि -1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6 बैठेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया और 11x को स्प्लिट कर दिया मैंने 5x प्लस 6x में, ये माइनस 6 जो का तू। अगेन देख लो इसकी ट्रिक क्या है, एक्स क्यूब जो का तू और माइनस 6x स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर में, और 11x को स्प्लिट कर दिया 5x प्लस 6x के अंदर। नाउ अब मैं पेयर बना दूंगा, पहले दो पेयर फिर ये वाले पेयर फिर ये वाले पेयर। पहले दो पेयर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों पेयर में से माइनस 5x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों पेयर में से 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बचेगा। अब x माइनस 1 तीनों से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 यहाँ बचेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बचेगा अब यहाँ पे। अब अगेन अब इसका फैक्टर करना है, फिर से मैंने 5x को 3x प्लस 2x में स्प्लिट कर दिया, बिकॉज 3 टू जा 6x होते हैं, 3 टू जा 6 होते हैं, इसलिए मैंने 5x को 3 प्लस 2 में स्प्लिट कर दिया। ये यहाँ पे जो का तो चलता रहेगा साथ में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6। अगेन यहाँ पे दो दो की टर्म बनेगी, ये दो टुगेदर ये दो टुगेदर। अगेन x कॉमन आया तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आया तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 कैन बी टेकन आउट एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी x माइनस 2। सो आप x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 2a प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू, I will put 2a plus 3b as x and 2a minus 3b as y. So the equation will be x square plus 2 into x, y and y square. And you can see this is the formula of x square plus y square plus 2xy. It will be x plus 5 का whole square. तो अब कुछ नहीं करना है, ये x की जगह 2a प्लस 3b लिख दिया, y की जगह 2a माइनस 3b रख दिया, 3b से 3b कैंसिल, 2a 4a एंड 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 7 माइनस x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 2y प्लस 12। अगेन I will put x minus 2y is another variable, that is z को पुट कर दिया। So the equation becomes 7z square minus 25z plus 12। Now अगेन बाहर वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई करी, प्रोडक्ट आया 84। अब 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे 25 आ जाए। तो 84 के फैक्टर क्या बैठेंगे, 21 इंटू 4 बैठेंगे, या तो ये होगा या 4 इंटू 21 बैठेंगे, या 84 इंटू 1 बैठेंगे। तो 24 में 1 ऐड, अगर मैं 21 में 4 ऐड करूँगा तो 25 आ जाएगा। तो फैक्टर यहाँ पे जो लिए जाएंगे वो 21 प्लस 4 लिए जाएंगे। बस अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, 7z, z माइनस 3, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, z माइनस 3, अब यहाँ से z माइनस 3 कॉमन आ गया तो 7z माइनस 4 बचेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू x माइनस 2y। तो x माइनस 2y माइनस 3, 7 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 4 मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया है। For question number 27 and 28, see the example number 9 on page number 2/16। आपको अपनी बुक का पेज नंबर 2/16 का एग्जाम्पल नंबर 9 देखना है, then you will be able to solve question number 27 and question number 2। So that's it for this video. In next video we will start with the exercise 2F। टिल देन आप यहाँ तक ये अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। और सबसे मेन मैं आपको एक वर्क बता दूं, HW के अंदर आपको सारे के सारे ऑल एग्जाम्पल्स शुड बी सॉल्व्ड इन योर नोटबुक। आपको सारे एग्जाम्पल अपने नोटबुक के अंदर सॉल्व करने हैं। Thank you students, stay home, stay safe।